Good morning, students. Today we will see experiment number 9 using a loop. In this practical, we will get the following practical skill, that is, write an algorithms of problems, then draw the flowcharts of given problem or algorithms, then develop a C program using variable, constant, and arithmetic expression, how to declare the variables in your programs, then debug the programs. It means to find out the errors, removing the errors, that is debugging. Then execute a simple program using a Turbo C and GCC compiler. Then looping. Loops are used in a programming to repeat a specific block of code or block of content or statements. For that we use the loops, where we use the repetition of tasks again and again. There we use the loops. Then students will able to write a program using a different loop statement. Then we have three kind of loops, that is while loop, do while loop, and for loop. These three loop statements used for the repetition of tasks. Then we'll see the loop flowchart. Here in a loop we check the condition. If condition is evaluated and if it is a true, then execute the while statements. Whatever contains, whatever block of code in a while body, that statements are executed when the while statements are true. And after the statement, again we will check the condition. If this condition is a true, then again we will display or execute block of statement. Again check the condition. If condition again true, then again we will execute block of statements. Then again check the condition. If condition is true, then execute the statement, and this loop repeat again and again until the while condition is true. If it is false, if condition is false, then execute the other statement. It means apart from the while loop statement. एक while loop के statement के बाहर का जो भी statement है वो execute हो जाएगा when the while condition is false. Now we'll see the flow chart to print the sum of entered digits. आपको क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है, वो नंबर के एडिशन परफॉर्म करना है, दैट इज द टू प्रिंट सम ऑफ एंटर्ड डिजिट्स. For that we required the some variable, that is num variable. It holds the value or digits, and reminder variable. The reminder variable will calculate, will get the last digit and store in remind variable. And sum, this variable it holds the address, it holds the addition of that digits. For that we declare all the variables here, number, reminder, and sum. Then we will read the number n. Number read करना है. Once we get the numbers value, nums value, then we will check the condition while number is greater than 0. जो भी नंबर है, नंबर greater than 0 है नहीं है, ये फाइंड करना है. If it is greater than 0, then we calculate these three formulae. We will process these formulae. The first one, to get the reminder. What is the reminder? Suppose number is 2, 3, 4, then 2, 3, 4 mod 10, then we get the reminder 4, and this reminder 4 will added in a sum variable. Initially sum value is a 0, 0 plus 4, that is sum value is 4, means last digit added in a sum. In this way, last, second last, first number added in a sum variable, and the numbers will be changed
two digits, three digits to two digits to one digit by using this formula. So this is the number changing, and this is the formula for summation, and this is the formula for to getting the last digit, to separate the last digit. लास्ट डिजिट सेपरेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो भी नंबर है, नंबर थ्री डिजिट, टू डिजिट, वन डिजिट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको प्रोसेस करना है. And after the separation, again we will check the condition. If condition is a true, then again we calculate the sum. Okay, so in this way we repeat this loop again and again. Suppose our number having four digit, then this expression and formula repeat four times. Okay, repeat four times. If it is false, while loop is a false, then print the summation of digit. So whatever summation we will get here, that summation will be displayed by using print statement. So this is the flowchart. Now we will see this flowchart in algorithmic form and programmatic form, and we will trace how it will work. Okay. So this is the algorithm. Print sum of enter digit, start, then declare required numbers, that is required variables, that is we required the three variables, that is num variable, sum variable, and remainder variable. Remainder variable for to separate the last digit, second last digit, first digit. Then we add this reminder into sum formula. For summation we use the sum variable, and for getting or holding, storing the value or number by using num variable. Okay, so these three variables we declare here first. Then initialize the sum is equals to 0 and remainder is equals to 0. The initial value of sum is a 0 because there is a no addition is performed firstly, so the value of sum is 0 and remainder is also 0 at the first step. Then accept the number from user, user के थ्रू आपको number accept करना है, and that value will store in a num variable. nu num variable में आपको value store करना है. Then this variable num variable will pass or will check in a while condition, while num greater than equals to 0. अगर एक condition true है, then we calculate or we process these three expressions. So these three expression, that is reminder is equals to num mod 10 and sum is equal to sum plus reminder, जो भी reminder आया है वो sum नाम के variable में add करना है, and results will be overlap into sum variable. Then again we divide the number by 10 to separate the digits, 3 digit to 2 digit, 2 digit to 1 digit. If numbers having 5 digit, then the numbers will separate 5 digit to 4 digit, 4 digit to 3 digit, or 3 digit to 2 digit, or 2 digit to 1 digit by using this num formula, num divided by 10 formula. So we process these three expression, and finally the results will stored, summation will be stored in a sum variable, and this step repeat step 5 until 5 and 6. ये step number 6 और 5 हमें repeat करना है, so we write step number 7, that is repeat step 5 until while condition is true. 6 and 5 steps हमें repeat करना है, ये while loop का और ये calculation का step repeat करना है. Then if while condition is a false, then we print display sum of n digits. जो भी नंबर आपने इंटर किया है उस नंबर की सम जो भी आई है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है. Then stop. This is the algorithm. Step by step procedure of given
problem. In this way, we write the step-by-step procedure of given problem. Now we'll see the program. So this is the program to print sum of entered digit. इसका मतलब अभी आउटपुट आपको देख के समझ में आएगा. Entered number 2, 3, 4. Here we entered number 2, 3 and 4, and addition of these three digits, that is 2 plus 3 plus 4, that is 9. Okay, so first of all we separate these 4 number, then we separate these 3 number, then we separate these 2 number and add into this sum variable. Okay, so we first get remainder 4, then we'll get remainder 3, then we'll get remainder 2, and we'll add it in a sum variable and calculate the sum and display the sum. This is the program to sum of entered digits. Entered digit जो भी किए हैं उसकी sum आपको print करना है. So यहाँ पे variables declare किए integer num, remainder 0 and sum is equals to 0. printf enter the number, any number. आपको number enter करना है. scanf %d and %num. फॉर एग्जाम्पल ये नंबर हमने इंटर किया था 234. ओके, नाउ दिस 234 number we will check in a while loop. So we write here while num greater than 0. जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है नहीं है वो फाइंड करना है. तो नंबर कौन सा है 234. तो 234 234 it is a greater than 0. It is a true. This condition is a true. So this condition is a true. 2, 3, 4 greater than 0. It is a true. So we'll go into the while loop body. तो यहाँ पे while loop body start होता है और यहाँ पे while loop body close होता है. तो ये condition true है, इसकी वजह से हम ये while loop body के अंदर जाने वाले हैं. तो ये while loop body जब हम यहाँ पे एंटर करोगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num mod 10. तो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू num mod 10. जो भी नंबर है, नंबर की वैल्यू क्या है 234 mod 10. तो mod ये ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है टू फाइंडिंग द कैलकुलेटिंग द रिमाइंडर. रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, इसे हम mod ऑपरेटर कहते हैं. तो num mod 10 by using this OR operator we will get the reminder. So in a rem variable or rem variable we store the reminder. Okay, reminder. So अभी नंबर क्या है 234, उसको हमने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आने वाला है. Quotient is 23 and reminder is 4. So then the remainder is 4 and that 4 will be stored in rem. So ये rem वेरिएबल में ये 4 वैल्यू अभी आ चुकी है. ओके, नाउ दिस 4 वैल्यू रिमाइंडर वैल्यू विल add into the sum variable. So sum is equals to sum plus reminder. ये हमारा फॉर्मूला है समेशन का. तो इनिशियली सम की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, सम वैल्यू इज 0 एंड 0 प्लस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर क्या आया था अभी 4 आया था, 0 प्लस 4, सो सम इज 4. तो ये सम वैल्यू यहाँ पर आ चुकी, फर्स्ट डिजिट की एडिशन यहाँ पर आ चुकी, दैट इज 4. नाउ वी विल चेक द चेंज द नंबर 3 digit to 2 digit by using this formula. So this in this formula the num is equals to num divided by 10 हमने किया. तो नंबर की वैल्यू क्या थी, नंबर हमारा था 234 डिवाइड बाय 10. तो इसको 10 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्या आया 23. ओके, तो 23 ये वैल्यू हमने num नाम के वेरिएबल में स्टोर की. नाउ num इज इक्वल्स टू 23. देन here we close the loop. So here while loop is again true because the number is greater than equals to greater than 0 है, ये कंडीशन ट्रू है.
तो ये लूप के अंदर जाएगा और नंबर जो है यहाँ पे हमारा 23 है। अभी 2 डिजिट नंबर हमें यहाँ पर मिला था। 23 इज ग्रेटर देन 0, इट इज अगेन ट्रू। So again we will go into the while loop body, and here we calculate the remainder. So remainder is equals to num mod 10. तो नंबर क्या है हमारा 23 mod 10, then remainder is equals to 3। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है 3 आया है। ओके, ये रिमाइंडर हमें सम वेरिएबल में ऐड करना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो सम की वैल्यू क्या है 4। जस्ट वेट, रिमाइंडर वैल्यू क्या है 4 है। लास्ट सम वैल्यू आई थी हमारी 4, 4 प्लस रिमाइंडर आया था अभी 3, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो 7 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल। नाउ again we calculate the number, change the number 2 digit to 1 digit by using this formula, that is num is equals to num divided by 10। नंबर क्या है 23। 23 डिवाइड बाय 10 करने के बाद क्वोशिएंट हमें मिल रहा है दैट इज 2, एंड दैट 2 वैल्यू विल असाइन टू द नम वेरिएबल। तो ये नंबर अभी हमारे पास आया है 2। ओके, now we will check in the loop, and here loop is true, so again we will go into the while loop body, and here remainder is equals to num mod 10। तो दो नंबर 2 नंबर की वैल्यू 2 आई थी, 2 mod 10, देन रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 आया। तो ये 2 रिमाइंडर हम ऐड कर रहे हैं सम प्लस रिमाइंडर में। तो सम की वैल्यू क्या आई थी प्रीवियसली 7, और रिमाइंडर की वैल्यू अभी क्या आई है 2। तो 7 प्लस 2 दैट इज सम इज इक्वल्स टू 9। तो हमें समेशन मिल चुकी है अभी 9। नाउ नाउ विल प्रोसेस दिस फॉर्मूला num इज इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 10। नंबर हमारे पास आया था अभी अपडेट होके 2, 2 डिवाइड बाय 10। तो दो को 10 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वैल्यू क्वोशिएंट क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ओके, सो नम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस लूप इज ट्रू। सो वी विल चेक हियर नंबर लेस देन 0, नंबर वैल्यू आई है 0, 0 लेस देन 0, द लूप 0 लेस देन 0 इज फॉल्स, बिकॉज नम की वैल्यू 0 है और 0 हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 ये ट्रू नहीं है, इट मीन्स इट इज फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स, देन we exit from the while loop and then print the sum of digit percent d and sum value। तो सम वैल्यू जो भी आई है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, एंड सम वैल्यू इज 9। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हम यहाँ पे देख रहे हैं एंटर नंबर। तो एंटर नंबर हमने 2 3 4 किया था और सम ऑफ डिजिट 9 ये वैल्यू यहाँ पर आई है। तो ये रिजल्ट 9 कैसे आ चुका है आपने यहाँ पे अभी ट्रेस करके मैंने आपको दिखाया है। तो इसी तरह ये जो व्हाइल लूप है ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। इफ दिस नंबर इज 4 डिजिट, then these 3 expressions will repeat 4 times. If number is a 5 digit, then these 3 expressions will repeat 5 times and will give the sum variable, that is summation, and we will display sum by using the other statement, that is print sum of digit, and sum is a integer type of variable. Sum is integer type of variable, so we use here percent d and sum, display the sum. In this way we will see the first program.
Now we will see the second program from this practical, that is to generate multiplication table up to 10 for number 1 to 5. आपको क्या करना है, टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल और सीरीज जो है 1 to 5 सीरीज हमें डिस्प्ले करना है. ओके, तो first of all we declare required variables. So here we use the repetition of task for 1 to 5 and repetition of task 1 to 10. So this for performing this we require the two for loop. So first for loop we use I variable, and for second for loop we use the j variable. Okay, so I variable it is for 1 to 5 digit, and j variable it is for multiplication 1 to 10 times. तो हमने ये फर्स्ट फॉर लूप लिखना है. तो फर्स्ट इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल. सो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इक्वल्स टू 5 तक टेस्ट करेंगे. तो i इज इक्वल्स टू 1 टेस्ट i लेस देन इक्वल टू 5. ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया. Then in this for loop again we will add one another for loop, that is multiplication of 1 to 10. So j is equals to 1. We initialize j is equals to 1, and j variable is tested up to 10 times. J variable test up to 10 times. If it is a true, then we will print the I and j's multiplication. I it is the first number, and j it is the series of 1 to 10 number. So 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 2, 1 multiplied by 3, 1 multiplied by 4, 1 multiplied by 5, 1 multiplied by 6, 1 multiplied by 7, 1 multiplied by 8, 1 multiplied by 9, 1 multiplied by 10. That is first table, first series 1 to 10 displayed. Now when the value will be changed by using I plus plus, so यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ये वैल्यू I प्लस प्लस करेंगे. जब ये फॉल्स हो जाएगा तो I प्लस प्लस करेंगे. ये प्लस होने के बाद यहाँ पर आएंगे I की वैल्यू 1 plus 1 that is 2. 2 less than equals to 0. This condition again true. So again we will repeat this formula of I and j's multiplication. Will display 10 times by using this condition j less than 10. So here the second series will be displayed by using this printf function, that is j I value is a 2 and j value is vary from 1 to 10. So I value is a 2. 2 multiplied by 1, 2. 2 multiplied 2, 4. 2 multiplied by 3, 6. 2 multiplied by 4, 8. 2 multiplied by 5, 10. 2 multiplied by 6, 12. 2 multiplied by 7, 14. 2 multiplied by 8, 16. 2 multiplied by 9, 18. 2 multiplied by 10, 20. So here by using this printf function we display the series of 2. 2's table will be displayed here, and this j's value will increment by using j plus plus and repeat this again and again. So this for loop repeat 10 times for the second series. Then the j's value is 11. Then 11 will compare with j variable. So your j's value is 11, j less than equals to 10. This condition is a false. When this is a false, then we will print new line. न्यू लाइन पे हमारा कर्सर जाएगा और i प्लस प्लस करेंगे, और जैसे ये i प्लस प्लस होता है then the cursor will go to the i i for loop. I का जो भी for loop है यहाँ पे आएगा. तो I की वैल्यू 2 प्लस 1, यहाँ पे I इंक्रीमेंट किया है, मतलब 2 प्लस 1 करने के बाद यहाँ पे आएगा, और 2 प्लस 1 that is 3 and 3 compare with 5. 3 is less than equals to 5. This condition is again true. So ये कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ पे j का for loop रिपीट करेंगे. तो ये j का for loop यहाँ पे लिखा हुआ है.
तो इनिशियली j की वैल्यू अभी यहाँ पे अगेन 1 है एंड 1 विल कंपेयर विद दिस 10 नंबर। तो ये वाला लूप हम अगेन रिपीट करेंगे 1 to 10 times and here we print the statement like I मल्टीप्लाइड बाय j। I की वैल्यू क्या है 3 है, j की वैल्यू क्या है 1 to 10 होगी क्योंकि फर्स्ट j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 इट इज a true, so we print 3 multiplied 1 that is a 3, then j plus plus j is increment by 1 that is a 2 and we'll check the condition 2 less than 10 it is a true, then we print 2 multiplied by 3 that is a 6, 6 प्रिंट करेंगे, देन j प्लस प्लस j एक से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने के बाद j की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 10, दिस कंडीशन अगेन ट्रू, सो वी प्रिंट द j मल्टीप्लाइड बाय I एंड दैट इज j की वैल्यू 4 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12, 12 प्रिंट हो जाएगा और j प्लस प्लस करने के बाद j की वैल्यू 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 हो जाएगी और हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 इट इज अगेन ट्रू, सो अगेन वी प्रिंट द I मल्टीप्लाइड बाय j, I की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 प्रिंट हो जाएगा, j इंक्रीमेंटेड बाय 1, so this repeat again and again up to this condition is true। तो ये for loop जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और यहाँ पे 3 का सीरीज डिस्प्ले हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड 1 3, 3 मल्टीप्लाइड 2 6, 3 मल्टीप्लाइड 3 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21, 3 multiplied by 8 24, 3 multiplied by 9 27 and 3 multiplied by 10 that is 30। यहाँ पे 3 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा और j की वैल्यू 10 plus 1 that is 11, then 11 we will check here, test here, the 11 less than equals to 10, again this condition is false, so we'll display the new line और न्यू लाइन पे कर्सर जाएगा, देन इंक्रीमेंट द I इज वेरिएबल, I इंक्रीमेंट करेंगे तो I की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, मतलब अभी हमें 4 का टेबल प्रिंट करना है। तो ये न्यू लाइन आने के बाद ये कर्सर यहाँ पे आएगा और I प्लस प्लस मतलब 3 प्लस 1, देन दिस 4 वैल्यू वी विल टेस्ट इन द ith फॉर लूप। तो ith के फॉर लूप में हम ये 4 वैल्यू I की 4 वैल्यू चेक करेंगे। तो I की वैल्यू 4 आई है, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 इट इज ट्रू, सो इट इज अ ट्रू, जस्ट वेट, हेलो हेलो 9 नंबर तक घर आहे, शैलेजा निवास म्हणून आहे, 4 नंबर तक खांब आहे लाईटचा, माऊलीनगरच्या पाठीपासून आत वळाले ना 4 नंबर तक खांब। हा हा 4 नंबरचा लाईटचा खांब तिथं थांबले ना, फोन करा ते खाली येतं लगेच, तिथंच गाडी वळवून घ्या। हा हा बरोबर, तुम्ही तिसऱ्या खांबापाशी वाटतं आता। हा अजून एक काम पुढं आलं, तिथं आले का समोर दिसते बघा एक झाड, करंजाचं झाड आहे बघा, हा बारक आहे, तिथे 2 मजली घर दिसते का? हा तिथं थांबा गाडी वळवून आणि फोन करा ते येतील खाली। हा 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 कलर केलेला नाही फक्त, हा फोन करा येतात खाली। So this repeat again here, I value I less than equals to 5, j is equals to 1, तो हम यहाँ पे ये टेस्ट करेंगे। तो ये जो है रिपीटेशन, ये 4 के टेबल के लिए ये 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और ये 5 के टेबल के लिए भी ये 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और जब I की वैल्यू 6 हो जाती है
तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है। फॉल्स मतलब आई की वैल्यू 6 है, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, सो दिस कंडीशन इज अ फॉल्स। सो ये कर्सर यहाँ पे जाएगा, मतलब लूप क्लोज हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। So here this first for loop, ith for loop repeat 5 times, and this for loop repeat 50 times. Okay, so this performing these 50 repetitions will get the 1 to 5 series. Table of 1 to 5 will display. Okay, now we will see this step by step. Before that, we will see the algorithm of this problem, that is generate a multiplication table up to 10 for a number 1 to 10. So first step होगा हमारा start, second step होगा declare I and j, then initialize I is equals to 1, j is equals to 1, initial value of I and j is 1 1. Then we will check the first for loop, that is 1 to 5 digits series. So I will compare I less than equals to 5, then while j less than equals to 10, it is a true. Then print j multiplied by I and j plus plus, then repeat step number 5, मतलब ये वाली स्टेप्स हमें रिपीट करना है फॉर प्रिंटिंग। तो ये रिपीटेशन 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है j लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक ये j 10 नहीं होता तब तक हम ये यहाँ पे प्रिंट i एंड j वैल्यू, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी है वो प्रिंट करते रहेंगे। ओके, सो रिपीट स्टेप 5, this one step, and until while is true. So when it is false, then we will print the step number 8, that is print new line। तो न्यू लाइन पे आएंगे और न्यू लाइन आने के बाद हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीज एंड रिपीट स्टेप नंबर 5। ये स्टेप नंबर 5 रिपीट करेंगे। तो स्टेप नंबर 5 रिपीट करने के लिए जब आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 से, देन रिपीट स्टेप नंबर 4 अंटिल वाइल इज ट्रू। तो हम यहाँ पर आएंगे और ये अगर लूप ट्रू होगा तो अगेन वी विल चेक दिस स्टेप 5 6 7, तो ये टास्क होते रहेगा। व्हेन इट इज अ फॉल्स, when j i's for loop is false, then we will stop, that is step number 10, stop। This is the algorithm. This algorithm you want to write in your lab manual। Now generate the multiplication table up to 10 for number 1 to 5। अभी ये प्रोग्राम आपको लिखना है, तो ये प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो फॉर लूप के लिए आपको 3 tasks include in a one statement, that is initialization, that is the condition, and that is the increment operator। सो हमने 3 कंडीशन, तीनों टास्क यहाँ पे लिखा है, इनिशियलाइज किया, कंडीशन परफॉर्म की और इंक्रीमेंट किया। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हमें 2 वेरिएबल्स लगते हैं। 1 to 5 डिजिट के लिए आई वेरिएबल लिया है, रिपीटेशन ऑफ 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमने जे वेरिएबल लिया है। तो आई एंड जे फर्स्ट वी डिक्लेयर एज एन इंटीजर, देन प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे। देन फर्स्ट फॉर लूप फॉर लाइन 5 लाइन है, तो 5 लाइन के लिए हमने ये फॉर लूप लिखा, स्टार्ट 1 टू आई लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 से लेके जब तक इक्वल टू 5 नहीं होता, यूजिंग इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये फॉर लूप हमने लिखा लाइन के लिए। और जैसे ही न्यू लाइन आता है तो हमें 10 मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है 1 to 10 टाइम्स, and by using j variable, and by multiplying j with I variable, we print j and I 10 times। So we use the for loop j is equals to 1, j less than equals to 10, and j plus plus until this for loop is a true, then we print j and i's value।
then print /n and get ch. Now output of this program will get like this. So first series 1 to 10, that is 1 to 10 series table will be displayed. Second series table will be displayed here like 2, 4, 6, 8, 10, 12. That is the second table. Third table 3 to 30 value, and fourth table that is 4 to 40 value, and fifth table 5 to 50 value. This is the output. So now we will see how these program output will be generated. So one by one we will see, and step by step we will see in the next slide. So here this for loop repeat 5 times and this for loop repeat uh, 10 times. So 5 multiplied by 10, that is a 50 times this I and j's multiplication is done here, and after the multiplication we will get this output. Okay, so we will trace one by one here. So first we after initialization I is equals to 1, j is equals to 1, or declaration I and j, we entered in this first for loop, that is for I is equals to 1 and I compare with 5 and I plus plus. Here the I value is a 1 and 1 less than equals to 5, it is a true. This for loop is a true, so our cursor is going to this while body, sorry, for loop body, and in this for loop one more for loop will be nested here, that is j's for loop. So initial j's value is 1 and previous I value is 1, I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है j लेस देन इक्वल्स टू 10, इट मीन्स j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है, एंड नेक्स्ट इटरेशन j वैल्यू विल बी j वैल्यू विल बी j plus plus, that is j plus 1 plus 1, that is 2. Okay, this condition is a true, so we print the I and j's multiplication. तो I की वैल्यू 1 आई थी और j की वैल्यू 1 आई थी। ये दो फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, इटरेट होने के बाद I की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, देन प्रिंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये j मल्टीप्लाइड बाय I मतलब j की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, 1 multiplied by 1, 1 will be displayed on a screen. तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये प्रिंट किया, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे ये वन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो है 1 multiplied 1 डिस्प्ले हो चुका है। Okay, now here the j for loop is closed. J for loop is true because 1 less than equals to 10, it is a true, and j value is 2। j की वैल्यू दो एक से इंक्रीज हो चुकी है, that is j is equals to 2। So again we will go to this for loop for checking the conditions or test the expression or condition। तो j is equals to 2, I की वैल्यू तो 1 ही है प्रीवियस फॉर लूप के थ्रू, एंड j वैल्यू इज इंक्रीज by 1, that is 2, and 2 less than equals to 10, j less than equals to 10 means 2 less than equal to 10, it is a true, and next iteration j की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे j की वैल्यू 2 आ चुकी है और ये कंडीशन ट्रू है। ये ट्रू होने के कारण यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलेगा, दैट इज प्रिंट परसेंटी आई एंड जे। तो आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू जे की वैल्यू है 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 2 विल बी डिस्प्ले। सो पहले फर्स्ट इटरेशन में 1 आया था, सेकेंड इटरेशन में 2 आ चुका है। ओके, तो ये होने के बाद यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका फॉर लूप, जे के फॉर लूप में। तो जे का फॉर लूप यहाँ पे ट्रू है बिकॉज 2 लेस देन 10, इट इज अ ट्रू, सो अगेन वी परफॉर्म द जेज फॉर लूप।
तो यहाँ पे जे फॉर लूप परफॉर्म करेंगे तो जे की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 3, तो आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 3 है और 3 लेस देन 10 इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और यहाँ पे जे की वैल्यू है 3, आई की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 that is 3 will be displayed here. Then again we repeat this j for j for loop is a true because 3 less than equals to 10 it is a true and j is incremented by 1 that is j is equals to 4। तो j की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक कंडीशन अगेन ट्रू है 4 लेस देन 10 इट इज अ ट्रू एंड नेक्स्ट इटरेशन j की वैल्यू 5 है। तो j की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है तो 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 that is 4 will be displayed। तो fourth calculation after fourth calculation 4 will be displayed here। Okay, this is the output। Now this for loop close here and this for loop condition is a true and j value is 5 because this j plus plus 4 plus 1 that is 5, j की वैल्यू अभी 5 आ चुकी है तो ये 5 वैल्यू लेके हम यहाँ पे इस फॉर लूप में आ चुके हैं। तो ये फॉर लूप में आगे वी विल चेक द कंडीशन दैट इज j less than equals to 10 or this condition is again true, so we will go into the for loop and here we perform the multiplication that is I multiplied by j and here I value is 1 and j value is 5, so I multiply j that is a 5 and 5 will be displayed on a screen। Okay, again this is the end of loop, j loop यहाँ पे end हो चुका है और ये लूप एंड होते समय हम चेक करेंगे ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज 4 लेस देन इक्वल टू 10, जे की वैल्यू 4 थी तो 4 लेस देन 10 इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है, ट्रू होने के कारण हम ये अगेन वी एंटर्ड इन जेस फॉर लूप हैविंग जे वैल्यू इज 6, जे को 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद जे की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये 6 वैल्यू लेके हम यहाँ पर j के फॉर लूप में एंटर करेंगे। तो j की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 6 और i की वैल्यू क्या आई थी प्रीवियस 1 आई थी, तो ये 6 लेस देन इक्वल टू 10, ये j की कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, j लेस देन इक्वल टू 10 इट मींस 6 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू एंड नेक्स्ट इटरेशन j की वैल्यू 7 होगी, ये कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे अगेन वी विल सी दिस स्टेटमेंट दैट इज I multiplied by j and i's value is 1 and j value is 6, so here we print 1 multiplied by 6 that is 6, 6 will be displayed on your screen पे 6 डिस्प्ले हो जाएगा। So again here the j for loop is true because 6 value is greater than equals to 10 is true and j value is increased by 1 that is 7, तो j की वैल्यू 7 है, 7 लेस देन 10 ये कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए j की वैल्यू 8 होने वाली है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने के कारण फॉर लूप के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर I मल्टीप्लाइड j मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 करने के बाद यहाँ पे 7 ये जो लास्ट आउटपुट आया है 7 ये यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे j का फॉर लूप क्लोज हो चुका, जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ ये कर्सर पोजीशन पे आप देख रहे हैं, तो j फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो j for loop is a true because 7 less than equals to 10 it is a true and j value is equals to 8, j की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये 8 वैल्यू लेके हम ये for loop में जाएंगे, तो ये for loop में लिखा है I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 8 है and 8 less than equals to 10 it is a true and next iteration j is equals to 9, j की वैल्यू 9 होगी नेक्स्ट इटरेशन के लिए और ये इटरेशन के लिए j की वैल्यू क्या आई थी 8, की वैल्यू क्या आई है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 will be displayed on screen, that is the output। okay,
Again, in the J's loop, J is 9, then J will compare in this for loop, that is 9 less than equals to 10. It is again true, so we display I and J की वैल्यू, I की वैल्यू 1 थी, J की वैल्यू 9 आई थी, अभी चेंज होने के बाद तो 9 will be displayed in this way, 9 स्क्रीन पे आएगा. Then again we end the J's for loop, और यहाँ पे कंडीशन 9 लेस देन इक्वल टू 10 इट इज द ट्रू थी, और ये जे प्लस प्लस के वजह से आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हो चुकी, दैट इज 9 प्लस 1 इट विल बी 10. तो जे की वैल्यू यहाँ पे 10 आ चुकी है. जे की वैल्यू जब 10 आती है तो हम अगेन ये फॉर लूप के अंदर जाएंगे, तो जे की वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू 1 ही थी, एंड 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज ये कंडीशन में हमने लिखा है 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10. तो ये कंडीशन ट्रू है, 10 इक्वल्स टू 10, इट इज ट्रू. एंड नेक्स्ट इटरेशन j इज इक्वल टू 11, तो j की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट टाइम 11 आ जाएगी, और 11 होने के बाद ये कंडीशन हो जाता है हमारा फॉल्स, तो ये लूप के अंदर जाएगा नहीं, और यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. ओके, जे 11 लेस देन इक्वल टू 10 इट इज अ फॉल्स, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स होने के कारण ये लूप के अंदर जाएगा नहीं, तो ये आएगा ये लूप के बाहर, मतलब उसने प्रिंट नहीं किया. ओके, देखिए यहाँ पर जब जे की वैल्यू 11 होती है तो 11 कंपेयर विथ 10 एंड इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये आएगा एंड ऑफ द जे फॉर लूप. जे फॉर लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा because the condition is a false and j loop is end, and we'll see or we'll print the new line statement. So we print slash n, by using slash n we'll take the new line, and after the new line the ith for loop will be checked here, and here I value is 1 less than equals to 5. It is true because I की value 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 आई फॉर लूप इज ट्रू, ये ट्रू है. ओके, अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल चेक इनटू द आई फॉर लूप, तो हम आई के फॉर लूप में आएंगे, और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 की जगह पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज दिस आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिकॉज आई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की है, एक से इंक्रीज की, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट करेंगे. आई की वैल्यू 2 आई है और 2 लेस देन इक्वल टू 5, इट इज अगेन ट्रू, सो वी विल दिस कंडीशन इज ट्रू, so again we will enter in this for loop, and I for loop, in between this I for loop we add one more for loop, that is a for loop. So here when we performing this for loop, so here I value 2 and j value is 1. Now this freshly we repeat this for loop again 10 times. Okay, this for loop 10 times repeat हो जाएगा again, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 1 होगी यहाँ पे, तो i की वैल्यू 1 2 आ चुकी है, j की वैल्यू 1 है, and we compare this j's value with this 10 number. So 1 less than equals to 10, it is a true, ये true है, and it is a true, and next iteration it will be 2. तो ये कंडीशन ट्रू होने के कारण हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे परसेंट आई मल्टीप्लाइड बाय जे. तो यहाँ पर आई की वैल्यू आई थी 2 एंड जे की वैल्यू आई थी 1 इन प्रीवियस स्टेप, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 मल्टीप्लाइड 1 इट विल बी डिस्प्लेड एज एन 2. तो यहाँ पे ये 2 रिजल्ट आ चुका है. ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टेबल जो है वो स्टार्ट होने वाला है. तो सेकेंड टेबल का फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट इटरेशन जो है 2, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. नाउ
the end of this for loop. Then end for loop is a true. So here J for loop is a true because 1 less than equals to 10. ये कंडीशन क्या है? ये टेस्ट कंडीशन ये ट्रू है यहाँ पर। तो ये टेस्ट कंडीशन ट्रू होने के कारण हम क्या करेंगे? अगेन वी विल एंटर इन अ J's for loop because J's वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे हम अभी चेक करेंगे J की वैल्यू आई थी 2 और I की वैल्यू भी 2 है। तो J कंपेयर विथ 10 नंबर, तो 2 लेस देन equals to 10, this condition is a true, again true. So we entered in J's for loop and we print I multiplied by J. तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है और 2 multiplied by 2 that is 4 and 4 will be displayed here. Okay, so and at the end of this for loop, J का for loop यहाँ पे end हुआ, लेकिन end होने के पहले हम चेक कर क्या करते हैं? The test condition, and test condition is true here. So J's for loop is a true because 2 less than equals to 10 is a true, and J value will be increased by 1, that is 2 plus 1, that is 3, and this by taking J's value 3 and we will test in this J for loop, and in this J for loop I value is a 2, J value is a 3 and 3 less than equals to 10, it is a true, ये true है, and next iteration J is equals to 4 आने वाला है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन ट्रू होने के कारण ये लूप के अंदर आएंगे, 2 multiplied by 3 6, then 6 will be displayed here, then again check the for loop, ये for loop यहाँ पे ट्रू है because 3 less than 10 है, and so we increase J value and J की वैल्यू 3 plus 1 होने के बाद 4 हो जाएगा। 4 J की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 2 है और 4 less than equals to 10, it is a true, and next iteration J is equals to 5 होगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू आई थी 2, J की वैल्यू आई थी 4, 2 multiplied by 4 8, now 8 will be displayed here, एंड यहाँ पे हम एंड करेंगे। एंड जैसे ही होता है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो 4 प्लस 1 होने के बाद J की वैल्यू हो जाती है 5, तो ये 5 लेके हम ये फॉर लूप टेस्ट करेंगे, रिपीट करेंगे। I की वैल्यू एज इट इज है 2 और J की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 10, इट इज अ ट्रू, एंड नेक्स्ट इटरेशन इट विल बी चेंज अप टू 6 होने वाले हैं। तो यहाँ पे I मल्टीप्लाइड बाई J, I की वैल्यू 2 है 5 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट 10 आ चुका। ठीक है, तो देन यू प्रिंट 10 इन द लूप एंड J इज इंक्रीज बाय 6, तो यहाँ पे J की वैल्यू 6 आई, I is equals to 2, J is equals to 6 and 6 less than equals to 10, it is a true, and next iteration J will be 7। तो यहाँ पे प्रिंट होगा I मल्टीप्लाइड बाई J, तो J की वैल्यू है 7, I की वैल्यू है J की वैल्यू है 6 और I की वैल्यू है 2, 2 multiplied by 6 that is 12, 12 will be displayed here। Again we'll end the loop and here we will check the condition 6 less than 10, it is a true, so we increase the value of J, that is 7, so 7 compare with 10, it is a true, so we display 7 multiplied by 2, that is 14, then end the loop, again this is a true, so J की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 8 compare with 10, it is a true, so 2 multiplied by 8, 16 will be displayed, then end the loop, condition true है तो J 1 से increase हो जाएगा, 8 plus 1 that is 9 and 9 compare with 10 and 9 less than equals to 10, it is a true, and so we print 2 plus 9 that is 18, okay, and here
loop is end, and 9 less than 10 is a true, and j is equals to 10. So this 10 value we compare with the tens. So 10 less than equals to 10, it is a true because 10 is equals to 10, it is a true. So 2 multiplied 10, 20 will be displayed on screen. That is second series or truth table will be displayed. Okay. At the end of this loop, the j's value will be 11, and 11 will compare with this for loop. So I की वैल्यू 2 थी, j की वैल्यू 11 होगी, और 11 लेस देन इक्वल टू 10, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो हम ये लूप में प्रिंट करने के लिए नहीं जाएंगे, ये एंड लूप करेंगे, ये लूप एंड करेंगे। तो j for loop is false because 11 less than equals to 10, it is a false. Then end j is for loop, j for loop end करेंगे and print new line print करेंगे, मतलब हम ये तीसरी लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा, ये स्लैश एन की वजह से कर्सर यहाँ पे आएगा, न्यू लाइन। ओके, और न्यू लाइन होने के बाद ये वाला फॉर लूप क्लोज करेंगे। तो ये वाला फॉर लूप किसका है? ये फर्स्ट वाला फॉर लूप, दैट इज आई फॉर लूप। तो आई की वैल्यू थी सेकंड, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है, इसलिए हम ये आई के फॉर लूप में जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 less than equals to 5, it is a true। तो यहाँ पे i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 1 है। ओके, तो 1, तो अभी ये वाला फॉर लूप जो है हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, और उसके लिए i की वैल्यू होगी 3 एंड j की वैल्यू हम ट्रेस करेंगे 1 टू लेके 10 तक, और हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 3 टेबल will be doing here। So j's value is 1 and I value is 3 and 1 compare with 10, so this condition is a true, so we'll enter in this for loop and print percentage I and j। so I की वैल्यू 3 थी, j की वैल्यू 1 है, तो 3 multiplied by 1, that is 3। So the third line, the 3 will be displayed, the loop is end here and condition is a true, so j is increased by 1, that is j value is a 2, and this 2 value will check here, the 2 I की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 2 है ये वैल्यू, 2 लेस देन 10, इट इज अ ट्रू। सो 3 multiplied by 2, that is a 6, 6 will be displayed, and end of this loop, the 2 less than 10 is a true, and j is increased by 1, it means 2 plus it will be value of j is a 3। ओके, तो ये 3 वैल्यू लेके हम ये फॉर लूप में आएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है, और यहाँ पे j की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये फॉर लूप में इंटर हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9, 9 रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इन दिस वे विल डिस्प्ले 9, 12, 15, 18, 21, 24, okay, 27 and 30। तो ये 3 table will be displayed। So one by one we'll see। तो यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, जे 4 वैल्यू होने के बाद जे कंपेयर करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12 डिस्प्ले हो जाएगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से
यहाँ पे 12 डिस्प्ले हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू है तो j की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 कंपेयर विथ 10, ये ट्रू है। ट्रू होने के कारण हम ये फॉर लूप परफॉर्म करेंगे। फॉर लूप के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, j की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 डिस्प्ले हो जाएगा। ये कंडीशन लूप यहाँ पे एंड हो रहा है तो लूप यहाँ पे चेक करेंगे। 5 लेस देन 10 था, it means it is a true, so j will be increased by 1, that is 5 plus 1, it is a 6, and j की वैल्यू 6 है, 6 कंपेयर विथ 10, so ये कंडीशन अगेन ट्रू है। so will entered in this for loop and I multiplied by j, तो j यहाँ पर है 3 multiplied by 6, that is 18 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे लूप क्लोज हो जाएगा, j की वैल्यू 7 हो जाएगी। 7 कंपेयर करेंगे 10 के साथ, ये ट्रू है इसलिए हम i मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21 डिस्प्ले हो जाएगा। ये कंडीशन अगेन ट्रू है। देन वी इंक्रीज द j वैल्यू, दैट इज 8, and 8 will compare with 10, this is a true, then will display i multiplied by j, तो i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24 डिस्प्ले हो जाएगा। एंड हो जाएगा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट एंड होने के बाद j की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 9, तो ये 9 वैल्यू लेके हम यहाँ पे चेक करेंगे। 9 लेस देन इक्वल्स टू 10, इट इज अ ट्रू। देन प्रिंट i मल्टीप्लाइड बाय j, i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 9 है, तो 27 डिस्प्ले हो जाएगा। और 27 यहाँ पे हम लूप एंड करेंगे, j 1 से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 10, एंड 10 अगेन वी कंपेयर विद पास इन दिस फॉर लूप and compare with this condition. So 10 less than equals to 10, it is a true. So we print I multiplied by j, so 3 multiplied by 10, that is 30, will be displayed. In this way the third table or threes table will be, or three series will be shown through our this repetition of task. तो यहाँ पे टास्क क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, टास्क रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट इज द लूप। सो आई एक्सप्लेन हियर द लूपिंग कंसेप्ट। तो लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपके सामने दिख रहा है, और ये टास्क रिपीट कैसे हो रहा है वो ट्रेस करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50 टाइम्स ये टास्क रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पे 30 टाइम्स तो रिपीट हो चुका है, और 20 टाइम्स में हम क्या करेंगे, और 4 एंड 5 का टेबल डिस्प्ले करेंगे। तो ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं अभी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लूप कैसे रिपीट होता है, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे लूप एंड हो चुका, और यहाँ पे j की वैल्यू 11 हो चुकी है, तो 11 यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, तो j की वैल्यू 11 है, i की वैल्यू 3 है, एंड 11 लेस देन 10 इट इज अ फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। ये फॉल्स होने के कारण, j की वैल्यू 11 होने के कारण हम ये लूप के अंदर अभी जाएंगे नहीं, तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट होता है। सो वी कांट एंटर इन दिस फॉर लूप, और वी डायरेक्टली क्लोज द फॉर लूप, यहाँ पे आएंगे, और ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम एंड द जे लूप एंड करेंगे, और जे लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट है, अदर स्टेटमेंट है, वो अदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। और अदर स्टेटमेंट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्लैश एन इट मीन्स न्यू लाइन। तो यहाँ पर हमारा कर्सर ये फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ लाइन पे, यहाँ पे ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। और ये आने के लिए यहाँ पे कोड क्या लिखा है, प्रिंट एफ स्लैश एन, ये वाला कोड लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे जाएगा। और ये होने के बाद हम ये लूप क्लोज कर रहे हैं, तो ये लूप कौन सा है, ये वाला लूप है हमारा जे का, और ये वाला लूप जो है यहाँ पे क्लोज हुआ वो है हमारा आई का मतलब ये वाला लूप है। तो ये लूप हम यहाँ पे चेक करेंगे, आई की वैल्यू 3 आई थी, 3 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, I for loop is a true, so I will be increased by 1, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी,
that is 3 plus 1, it is 4, and I is 4, and condition we will check here, I less than equals to 5. ये condition true है because 4 less than equals to 5, it is a true. So again we will enter in this for loop. ये लूप के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे freshly newly we check the condition again and again. So here the j's value is 1, fresh j's value is 1. So j value 1 है, I की value 4 है, एंड कंडीशन यहाँ पे हम चेक क्या करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू 10, इट इज अ ट्रू, ये ट्रू है। ट्रू होने के कारण हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, लूप में जाएंगे और लूप में आने के बाद उसको फर्स्ट स्टेटमेंट मिलता है, दैट इज प्रिंट या परसेंट डी आई एंड जे। तो आई की वैल्यू थी 4 और जे की वैल्यू थी 1, तो 4 प्लस 1 दैट इज 4, 4 विल बी डिस्प्लेड ऑन अ फोर्थ लाइन। तो फोर्थ लाइन पे हमें 4 प्लस 1 ये प्रिंट हुआ स्टेटमेंट पहला। अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, इट इज अ ट्रू, एंड जे की वैल्यू 2 होती है, तो 2 हम कंपेयर करेंगे 10 के साथ, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। ट्रू इसलिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो 8 यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये लूप यहाँ पे एंड करेंगे, तो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो हम जे को इंक्रीज करेंगे, दैट इज 2 प्लस 1, it is a 3, and 3 will compare in loop, and 3 less than equals to 10, the condition test expression is a true, ये true है इसलिए हम यहाँ पर लूप के अंदर जाएंगे। I की वैल्यू 4 है, J की वैल्यू 3 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12, तो यहाँ पे 12 डिस्प्ले हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डिजिट आने वाला है, तो ये लूप एंड करेंगे, J की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 10 ये कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 4 लेस देन 10 इट इज अ ट्रू, तो हम यहाँ पे i मल्टीप्लाइड बाय j 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्रिंट करेंगे, दैट इज अ 16, बिकॉज i की वैल्यू 4 है और j की वैल्यू भी 4 है, तो 16 ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और लूप क्लोज कर देंगे, तो 4 लेस देन इक्वल टू 10 इट इज अ ट्रू, एंड j वैल्यू इज 5, j की वैल्यू 5 हो चुकी, तो ये 5 हम कंपेयर करेंगे 10 के साथ, 5 लेस देन 10 ये ट्रू है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 4 है, j की वैल्यू 5 है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 डिस्प्ले हो जाएगा। 20 होने के बाद ये फॉर लूप में करेंगे, फॉर लूप में ये जो कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये 6 वैल्यू लेके हम कंपेयर करेंगे j लेस देन इक्वल टू 6 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे i मल्टीप्लाइड बाय j, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 24 डिस्प्ले हो जाएगा। देन ये लूप एंड हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है, तो 6 प्लस 1 दैट इज 7, j की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 7 हम 10 के साथ कंपेयर करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है, बिकॉज 7 लेस देन 10 इट इज अ ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। सो अगेन वी विल एंटर इन दिस फॉर लूप एंड प्रिंट i मल्टीप्लाइड बाय j, i की वैल्यू 4 है, j की वैल्यू 7 है, दैट इज 28 डिस्प्ले हो जाएगा, ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन हमारा प्रीवियस कंडीशन था 7 लेस देन 10, ये ट्रू है इसका मतलब हम ये 1 से इंक्रीज करेंगे काउंटर वेरिएबल, तो 7 प्लस 1 दैट इज 8, 8 होने के बाद यहाँ पर आएंगे लूप में, लूप चेक करेंगे 8 लेस देन 10, ये कंडीशन अगेन ट्रू है, तो हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 32 डिस्प्ले करेंगे, लूप एंड करेंगे, कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे दैट इज 9, तो 9 कंपेयर करेंगे 10 के साथ, तो 9 लेस देन 10 ये ट्रू है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 36 डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, 9 प्लस 1 दैट इज 10, j की वैल्यू 10 हो जाएगी, और 10 कंपेयर विद 10, सो 10 लेस देन तो नहीं है लेकिन 10 इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन अगेन ट्रू है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 40 डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा,
और j की वैल्यू 10 प्लस 1 दैट इज 11 और 11 हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 11 लेस देन इक्वल टू 10 इट इज अ फॉल्स, ये कंडीशन हो जाता है यहाँ पे फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कुछ प्रिंट करेंगे नहीं और ये जो जे वाला फॉर लूप है ये फॉल्स होने के कारण एंड हो जाएगा और न्यू स्टेटमेंट जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा दैट इज न्यू लाइन। और यहाँ पे हमने कोड लिखा है न्यू लाइन का स्लैश एन लिखा है मतलब न्यू लाइन का कोड लिखा है। सो यहाँ पे न्यू लाइन पे ये कर्सर आ जाएगा फिफ्थ लाइन पे। तो फिफ्थ लाइन आने के बाद हमारा स्टार्ट होता है फॉर आई का फॉर लूप, लाइन का फॉर लूप, ठीक है। तो ये हमारा लाइन का फॉर लूप है, आई का फॉर लूप उसे हम कहते हैं। तो आई की वैल्यू आई थी 4, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज 4 जो है वो स्मॉल है 5 से, ये कंडीशन ट्रू। सो अगेन वी विल चेक दिस फॉर लूप एंड आई की वैल्यू 4 प्लस 1 दैट इज 5 हो जाएगी और 5 लेस देन इक्वल टू 5 इट इज ट्रू, ये ट्रू है इसलिए अगेन ये फ्रेशली न्यूली जेस फॉर लूप विल बी रिपीटेड 10 टाइम, ये जे का फॉर लूप 10 टाइम्स रिपीट करेगा। तो इनिशियल जे की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7, जे की वैल्यू 8, जे की वैल्यू 9, जे की वैल्यू 10। तो ये फॉर लूप जो है जे का 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा और ये कैलकुलेशंस प्रिंट होते रहेगा। तो आई की वैल्यू 5 और j की वैल्यू 1 देन प्रिंट 5 प्लस 1। तो 5 प्लस 1 डिस्प्ले हो चुका, ये कंडीशन फॉल्स ट्रू है, j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5 मल्टीप्लाई टू 10 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे 10 आया, ये कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो j लेस देन 3 लेस देन 10, ये कंडीशन अगेन ट्रू है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, ये कंडीशन ट्रू, j increase 4 compare with 10 it is a true, so 5 multiplied by 4 20, 20 will be displayed, j for loop close, check the condition 4 less than 10 it is true, so we increase the ये j plus plus increase करता है वैल्यू j plus plus, तो 4 plus 1 that is 5 and 5 will compare with 10, 5 less than equals to 10 it is a true, I multiplied by j that is 4 multiplied by 5 20 डिस्प्ले हो जाएगा, 25 डिस्प्ले हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड सॉरी यहाँ पे i की वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 25 डिस्प्ले हो जाएगा, ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और 5 less than 10 is again true and j's value is a 6 and 6 will compare with 10 it is also true, so 5 multiplied by 6 j value is a 6 है, I value 5 है, 5 multiplied by 6 that is a 30 value डिस्प्ले हो जाएगी, ये लूप यहाँ पे चेंज हो जाएगा ट्रू है, j की वैल्यू चेंज हो जाएगी 6 to 7 and 7 compared with 10 it is a true, so 7 multiplied by 5 that is 35 displayed here and then end the loop, j for loop is true and value of j will be increased to 8 and 8 compared with 10 number, okay, and this is again true, so we print I multiplied by j, so I value is 5 and j value is 8, so that is 40, so 40 will be displayed and we'll again end the loop jth loop, but j loop is again true and so we increase the j value that is j plus 1 that is 9 and 9 will be compared with the 10 value it is again true, so 5 plus 5 multiplied by 9 that is 45, 45 will be displayed and last time that is again 9 is increased by 1 that is a 10 and 10 is compared with 10 it is again true, so we print 5 multiplied by 10 that is a 50, okay,
So in this way, the 50 calculations will be done here by using this 4 line code. आपको लाइन पर कोड कितने लाइन का दिख रहा है? 4 लाइन का, लेकिन वो 4 लाइन में रिपीटेशन कितने की है? 50 टाइम्स रिपीट किया है. ओके, सो दिस इज द main purpose behind this, why we study the loop. So repetition of task is there, that times we use the loop concept. So here 5 I की वैल्यू 5 थी, j की वैल्यू 10 थी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 50 रिजल्ट आया, यहाँ पे एंड किया, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, j की वैल्यू 11 हो जाएगी, और 11 हम 10 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये कंडीशन हो जाता है फॉल्स. तो ये फॉल्स होने के बाद हम ये फॉर लूप के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे डायरेक्टली 11 लेस देन 10 it is a false, so end the j's loop and we'll print the new line. तो न्यू लाइन हम यहाँ पे 50 के बाद यहाँ पे हमारा कर्सर आएगा 6 पोजीशन पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू थी, और जब आई की वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है तो आई इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये 6 हम ये आई के साथ कंपेयर करेंगे, 5 के साथ कंपेयर करेंगे, तो 6 लेस देन 5 इट इज अ फॉल्स. तो ये फॉल्स होने के कारण ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा. ये आई फॉर लूप is close here, and directly we get here. We'll see the statement is gets here. So it is the end of statement. ये हमारा end of statement है. Okay. So in this way we study here the for loop and while loop. For your understanding, we will see this multiplication table, and here we performing the 50 calculation, 50 times calculations. So here we printing this one statement, that is I multiplied by j, and this formula we will repeat 50 times by using only these 2 lines. So first line for loop, I for loop, and second line for j for loop. By using these two for loop, we done the calculations like this. तो हमने यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन ये वैल्यूज कैलकुलेट करके किए हैं. लेकिन जब हम ये प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, तो प्रोग्राम परफॉर्म करते समय और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, एट द वन क्लिक विल डिस्प्ले द रिजल्ट. हम रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, मतलब एक बटन एक क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट शो हो जाता है. अगर तो कोड जो है वो 4 लाइन का है, और एक क्लिक पे आपको 50 कैलकुलेशन करना, मतलब करके यहाँ पे मिलता है. तो ये लूप के अंदर आप यहाँ पे 1000 भी लिखते हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 5000 टाइम्स ये कैलकुलेशन करेगा ये प्रोग्राम. ओके, so this is the main applications and the main things of repetition. So you just remember, for repetition of task we use the loop concept, that is while loop, do while loop, and for loop. If any query or doubt, you can ask me. Thank you very much.